Hello everyone, I am Haritika Sharma and welcome to Haritika School of Political Science. So today we are going to study the first chapter, the Cold War. Now this chapter is not included in your current CBSE syllabus. Your first chapter is End of Bipolarity, but we are studying this because this creates a foundation for international relations. आपको बहुत ये help करता है to understand international relations, book को समझने के लिए और base की तरह ये काम करता है. So the name of the chapter is, as I said, the Cold War. So let's get started. So from the first page itself, you can see कि दो countries के flag दिए हुए हैं यहाँ पर. एक है US का and the other is of USSR. एक US और USSR. So this shows that the Cold War was between US and USSR. Fine. अब US तो हमें पता है क्या है, लेकिन USSR क्या है? So USSR की full form थी Union of Soviet Socialist Republic, and in very simple language it was Russia, but not exactly Russia. So it had 15 republics and Russia was just one of the republic. So this is the map of USSR, and here we can see that Russia was just one of the republic and other 14 republics were Lithuania, Estonia, Latvia, Belarus, Moldova, Ukraine, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan and Tajikistan. So this was your entire USSR. ये आपका पूरा का पूरा USSR था. Now, whenever we begin this chapter, the first question that comes to our mind is, what is Cold War? Cold War थी क्या? तो इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना होगा. बैकग्राउंड क्या? हमको थोड़ा सा समझना होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज बिटवीन 1939 टू 45. 1939 से 1945 के बीच में थी, दो ग्रुप्स के बीच में. फाइन. एक थे एक्सेस पावर्स. एक्सेस पावर्स में कौन कौन थे? एक्सेस पावर्स में थे जर्मनी, जापान, इटली. तीनों बहुत पावरफुल थे एट दैट टाइम, एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन कंट्री टू डिफीट देम. सो दैट इज वाई अ ग्रैंड अलायंस वॉज क्रिएटेड. ग्रैंड अलायंस. अब अलायंस क्या होता है? Alliance is group of countries created for strategic purposes. Strategic मतलब security reasons की वजह से, और it is created for any existing or perceived threats to the security of the members of the alliance. Fine. दो sides थे इसके, एक west और east. west से कौन कौन थे? US, UK and France. Fine. ईस्ट से कौन थे? USSR. सो इन सब ने मिलकर डिफीट किया एक्सेस पावर्स को. फाइन. अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, मतलब एक्सेस पावर्स वर डिफीटेड. ठीक है. जर्मनी, जापान, इटली, दे वर डिवेस्टेटेड. एंटायर यूरोप वाज डिवेस्टेटेड. लास्ट में सिर्फ दो ही सुपर पावर्स बचते हैं, एक था US और दूसरा USSR. और इन दोनों में डिस्ट्रस्ट आ जाता है, ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है. फाइन. And this led to what is called Cold War. अब Cold War सिर्फ पावर के लिए नहीं थी. It was not just a war for power. It was also an ideological war. Ideological war भी थी. अब ideological war क्या होती है? So US जो है वो प्रमोट करता है the ideology of liberal democracy. Fine. And capitalism. Capitalism means free market or right to private property. और USSR जो है वो प्रमोट करता है ideology of communism, that is stateless classless society or stateless classless society and socialism. Socialism means absence of private property. फाइन. अब द क्वेश्चन इज, वॉर तो वॉर होती है, कोल्ड वॉर, हॉट वॉर क्या होता है? सो कोल्ड वॉर मीन्स कि टेंशंस थे, कंपटीशन थे, लेकिन डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन कभी नहीं हुई. मतलब
यूएस और यूएसएसआर एक दूसरे के सामने गन लेके लड़ाई करना कभी नहीं शुरू किया उन्होंने. फाइन. सो लेट्स अंडरस्टैंड कोल्ड वॉर इन डिटेल नाउ. So, as I said, it happened after the Second World War. The Allied forces led by US, Soviet Union, Britain and France were defeated the Axis powers led by Germany, Italy and Japan. The war had involved almost all the major powers of the world and spread out to regions outside Europe, including Southeast Asia, China, Burma and parts of India's northeast as well. The World War ended when the United States dropped 2 atomic bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945, causing Japan to surrender. तो हिरोशिमा में जो बॉम्ब गिराया गया उसकी जो यील्ड थी दैट वाज 15 किलोटन्स और नागासाकी में जो गिराया गया उसकी 21 किलोटन्स. इस बॉम्ब का कोड नेम था लिटिल बॉय और इसका था फैट मैन. फाइन. तो नाम से ही पता चलता है कि इधर जो डिस्ट्रक्शन हुई वो कम थी एज कंपेयर टू नागासाकी. अब जो यूएस और रशिया और बाकी कंट्रीज के पास भी जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो 1000 किलोटन्स के हैं, उनकी यील्ड 1000 किलोटन्स हैं और वो 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव हैं देन दीज बॉम्ब्स. तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर अब न्यूक्लियर वॉर होती है तो क्या ये वर्ल्ड बचेगा? नो चांस. फाइन. सो द मैसेज इज प्लीज अवॉइड वॉर. ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू दिस. With the defeat of Germany and Japan, the devastation of Europe and in many other parts of the world, the United States and Soviet Union became the greatest powers in the world. The Cold War, this is the exact definition of Cold War. So, Cold War referred to the competition, tensions and a series of confrontation between the United States and Soviet Union backed by their respective allies. ओके, सो मेजर इवेंट जो कोल्ड वॉर का था वो था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. जब लगा कि ये वर्ल्ड अब ख़त्म हो गया तो ऐसा क्या हुआ था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में? सो इन अप्रैल 1961 the leaders of Union of Soviet Socialist Republics were worried that the United States of America would invade communist-ruled Cuba and overthrow Fidel Castro, the president of small island nation of the coast of United States. Cuba was an ally of Soviet Union. In 1962, he placed nuclear missiles in Cuba. The installation of these weapons put the US for the first time under fire from close range and nearly doubled the number of bases or cities in the American mainland which could be threatened by USSR. The US President John F. Kennedy and his advisors were reluctant to do anything that might lead to full-scale nuclear war between the two countries. Eventually, to the world's great relief, both sides decided to avoid war. The Soviet ships slowed down and turned back. So this is the map. यहाँ पर आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है एंड दिस इज क्यूबा. अब क्यूबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रॉक्सिमिटी में होते हुए भी सोवियत यूनियन के कैंप में था या फिर सोवियत यूनियन का अलाय था. तो अब यूएसएसआर ने क्या किया, इसको अपना मिलिट्री बेस बनाने का सोचा और यहाँ पर अपने वेपन्स खड़े कर दिए. कौन से वेपन्स? न्यूक्लियर मिसाइल्स. अब काफ़ी टाइम तक अमेरिकन्स को पता ही नहीं चला कि यहाँ पर न्यूक्लियर मिसाइल्स थी और ये न्यूक्लियर मिसाइल्स इतनी डेंजरस थी कि ऑलमोस्ट ऑल मेजर सिटीज़ ऑफ अमेरिका दे केम अंडर इट्स रेंज. दे वर थ्रेटेंड बाय यूएसएसआर और दीज न्यूक्लियर मिसाइल्स. अब तब यूएस प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी. वो कुछ ऐसा भी नहीं करना चाहते थे कि जिससे न्यूक्लियर वॉर हो जाए, फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर हो जाए. अगर जो यूएसएसआर के शिप्स यहाँ पर आ रहे थे वो उनको रोकते तब भी चांसेस थे, कुछ कहते तब भी चांसेस थे. बट इवेंचुअली दोनों साइड्स में विजडम आ गया. ठीक है, सोवियत
यूनियन ने भी अपने जो शिप्स थे वो स्लो डाउन कर दिए, वापस बुला लिए और न्यूक्लियर वॉर होते होते रह गई. सो दिस वाज द हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर. और आप देखेंगे दिस वाज द टाइम ऑफ 1961. ठीक है, 1962 में चाइना ने हम पे अटैक किया. क्यों अटैक किया? क्योंकि सारी कंट्रीज की जो अटेंशन थी दैट वाज टुवर्ड्स क्यूबा एंड यूएसए. तो जब सबकी अटेंशन उधर थी तो चाइना को बहुत अच्छा मौका मिला इंडिया पे अटैक करने का. ओके, सो द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई कोल्ड वॉर? जब इतनी ज़्यादा टेंशन्स थी, इतने ज़्यादा कंपटीशन थी बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, तो वॉर कोल्ड ही क्यों रही, हॉट में क्यों नहीं बदल गई? So the reason behind this is whenever the two countries are in possession of nuclear weapons, so the chances of full scale war or conventional war मतलब जो हम आर्म्स को यूज करके वॉर करते हैं, जो ट्रेडिशनली वॉर होती है, तो उसके चांसेस बहुत कम हैं. क्यों? क्योंकि दोनों को डर है कहीं इसको गुस्सा आ गया और इसने हम पे न्यूक्लियर वेपन चला दिया तो इसलिए चांसेस ऑफ फुल स्केल वॉर आर वेरी लो whenever the two countries are in possession of nuclear weapons. This is known as logic of deterrence. इसलिए इंडिया और पाकिस्तान में आजकल डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं हो रही, टेररिज्म ही चल रहा है. पाकिस्तान टेररिज्म ही प्रमोट कर रहा है क्योंकि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉर के चांसेस बहुत कम हैं. बट देर वॉज एन एग्जाम्पल जब हम दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे लेकिन तब भी कन्वेंशनल वॉर हुई थी, एंड द एग्जाम्पल इज कारगिल क्राइसिस. सो नाउ टॉकिंग अबाउट लॉजिक ऑफ डिटरेंस, both sides have the capacity, this means both sides have the capacity to retaliate against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate war. The two superpowers and the countries in the rival blocs led by the superpowers were expected to behave as rational and responsible actors. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन हुई ही नहीं. सो दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन हुई लेकिन डायरेक्टली यूएस और यूएसएसआर एक दूसरे के अगेंस्ट गन लेके नहीं खड़े थे, उनके एलीज खड़े थे. सो उन्होंने प्रॉक्सी वॉर्स कराई और इन्हीं को बोलते हैं एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर. जैसे कि कॉन्गो क्राइसिस हुए, कोरियन वॉर हुई, वियतनाम में वॉर हुई. सो दीज वर एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर. ठीक है, और एक साइड को एक सुपर पावर सपोर्ट करता था, दूसरे साइड को दूसरा सुपर पावर सपोर्ट करता था. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ईरान इराक वॉर भी देखें तो इराक वॉज सपोर्टेड बाय यूएस, ईरान वॉज सपोर्टेड बाय यूएसएसआर. तो ऐसे प्रॉक्सी वॉर्स चलती गई. नाउ इमर्जेंस ऑफ पावर ब्लॉक्स. अब क्या हुआ, जो दो सुपर पावर्स थी दे वर ट्राइंग टू ब्रिंग अदर कंट्रीज एज वेल अंडर देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. तो इससे क्या हुआ, द वर्ल्ड गॉट डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स, एक वेस्ट ब्लॉक और ईस्ट ब्लॉक. West block was led by US and the Eastern block was led by USSR. इसी को हम बोलते हैं Western Alliance and Eastern Alliance. और ये अलायंस को क्या बोला जाने लगा, नाटो एंड वॉर्सो. जब नाटो बना, नाटो वॉज लेड बाय यूएस, तो ऑन द अदर हैंड यूएसएसआर ने भी अपना बना लिया वॉर्सो पैक्ट. ठीक है, वॉर्सो अलायंस वो ले आए. Okay, so the world got divided into two poles, into two blocks, and this is called bipolarity. Bi means two, poles means pole apart. So दो poles बन गए थे और world got divided into two poles, and this is called bipolarity. So the two superpowers were keen on expanding their sphere of influence in different parts of the world. Now the question is, allies जो हैं वो उनके अंडर क्यों आएंगे? allies उनके अंडर इसलिए आएंगे क्योंकि उनको प्रोटेक्शन चाहिए थी, वेपन चाहिए थे, इकोनॉमिक एड अगेंस्ट लोकल राइवल्स चाहिए थे. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान यूएस का अलाई था तो उसको प्रोटेक्शन मिलती रही, पाकिस्तान से वेपन्स मिलते रहे और इकोनॉमिक एड अगेंस्ट इंडिया भी मिलता रहा. ओके, द वर्ल्ड गॉट डिवाइडेड इनटू टू कैंप्स. दिस डिविजन फर्स्ट हैपेंड इन यूरोप. Most countries of Western Europe sided with the US and those of Eastern Europe joined the Soviet camp. Okay,
अब जब दोनों सुपर पावर्स इतनी पावरफुल थी कि अगर हम एलाइज की कंबाइंड इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर देखें तब भी उनके साथ मैच नहीं होगा, तो ये अलाइज उनको चाहिए क्यों थे? यूएस और यूएसएसआर को ये अलाइज क्यों चाहिए थे? सो द रीज़न बिहाइंड दिस वार, वाइटल रिसोर्सेज के लिए फॉर एग्जाम्पल यूएस ने हमेशा कोशिश की कि मिडल ईस्ट उसके अंडर रहे। क्यों? बिकॉज दैट रीजन इज रिच इन ऑयल, तो एंड ऑयल इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, मेजर कॉमोडिटी है वर्ल्ड ट्रेड का। तो यूएस ने हमेशा कोशिश की कि मिडल ईस्ट उनके अंडर रहे। ठीक है, टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स, जैसे क्यूबा एक टेरिटरी बन गई थी जहां से वो यूएस के ऊपर वेपन्स लॉन्च कर सकते थे। ओके, एंड लोकेशंस फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर, इकोनॉमिक सपोर्ट इन दैट मेनी स्मॉल अलाइज टुगेदर कुड हेल्प पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस। Okay, so this is the map. Here we can see that this was NATO, मतलब Western Alliance, and this was Warsaw, Eastern Alliance. Okay. Okay. The Western Alliance was formalized into an organization, the North Atlantic Treaty Organization, which came into existence in April 1949. It was an association of 12 states which declared that armed attack on any one of them in Europe or North America would be regarded as an attack on all of them. मतलब क्या कि 12 कंट्रीज थी नाटो में। ओके, स्टेट्स हियर मीन्स कंट्रीज ओनली। जब भी हम इंटरनेशनल स्फीयर में इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं तो कंट्रीज को स्टेट बोला जाता है। टर्म दैट इज यूज्ड फॉर कंट्रीज इज स्टेट। ओके, सो नाटो में 12 कंट्रीज या 12 स्टेट्स थे, फाइन। और ये प्रोविजन था नाटो का कि अगर यूएसएसआर या उसका अलाई एक भी मेंबर पे अटैक करता है, देन दैट अटैक विल बी कंसीडर्ड एज एन अटैक ऑन 12 कंट्रीज। ये पूरी नाटो के ऊपर अटैक समझा जाएगा। ओके, और the Eastern Alliance, known as the Warsaw Pact, was led by the Soviet Union. It was created in 1955. जब वेस्ट जर्मनी ने नाटो ज्वाइन कर लिया तो सोवियत यूनियन ने भी अपना वॉर्सो पैक्ट बनाया, and its principal function was to counter NATO forces in Europe. Okay, in some cases the superpowers used their military power to bring economic countries into their respective alliances. Soviet intervention in East Europe provides an example. तो यूएसएसआर ने क्या किया? यूएसएसआर ने अपनी आर्मी अबंडेंस में ईस्टर्न यूरोप में छोड़ दी, ईस्टर्न यूरोप में खड़ी करा दी। तो मिलिट्री पावर को यूज करके भी यूएसएसआर ने ये इंश्योर किया कि ये जो रीजन्स हैं वो उसके अलायंस में आए। और बहुत बार इकोनॉमिक पावर का भी यूज किया गया। फॉर एग्जाम्पल मार्शल प्लान के अंडर यूएस ने काफ़ी बहुत सारे पैसे दिए वेस्ट यूरोप को फॉर रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, अल्टीमेटली उनका एम क्या था कि जो वेस्ट यूरोप है वो उनके अंडर आ जाए। इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इन वेस्ट एशिया, दैट इज मिडिल ईस्ट, द यूनाइटेड स्टेट्स बिल्ट एन अलायंस सिस्टम कॉल्ड द साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो एंड सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो। The Soviet Union and Communist China responded by having close relations with regional countries such as North Vietnam, North Korea, and Iraq. Now talking about arms race and arms control treaty. Arms race क्या होती है? तो US और USSR को दोनों में ही डिस्ट्रस्ट था, तो दोनों आर्म्स रेस कर रहे थे। मतलब कि अगर मेरे पास 99 है तो अगर यूएस के पास 99 है तो 99 वेपन्स हैं, तो यूएसएसआर को चाहिए 100। फिर यूएसएसआर के पास 100 आ गए तो यूएस को चाहिए 101। यूएस के पास 101 तो यूएसएसआर को चाहिए 102। ऐसे आर्म्स रेस चल रही थी। ओके, सो म्यूचुअल सस्पिशंस लेड देम टू arm themselves to the teeth and to constantly prepare for war. Huge stocks of arms were considered necessary to prevent war from taking place. लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था? नेगेटिव इम्पैक्ट था कि हो सकता है मिसकैलकुलेशन हो जाए, हो सकता है यूएस के पास 99 हो ही ना,
15 हो और यूएसएसआर उसको 99 समझ रहा है और इसलिए वो अपने आर्म्स बढ़ाए जा रहा है। हो सकता है कोई मिस्चीवियसली एक आर्म को फायर कर दे, न्यूक्लियर वेपन को फायर कर दे, फॉर एग्जाम्पल। नाउ इट्स नॉट एन एग्जाम्पल, एक इंसिडेंट हुआ था कि इंडिया की एक मिसाइल पाकिस्तान में लैंड कर जाती है। नाउ वेदर इट वाज एन एक्सीडेंट या फिर डेलिबरेटली किया गया था, नाउ ये तो गवर्नमेंट को पता है, बट ऐसा हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन कोई मिस्चीवियसली फायर कर दे या फिर एक्सीडेंटली फायर हो जाए। सो इसीलिए दोनों साइड्स ने क्या सोचा कि हम आर्म्स को कंट्रोल करेंगे, इसलिए आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज साइन की गई। ओके, द टू साइड्स अंडरस्टूड दैट वॉर माइट अकर इन स्पाइट ऑफ रिस्ट्रेन. Either side might miscalculate the number of weapons in the possession of other side. They might misunderstand the intentions of the other side. In time, therefore, the US and USSR decided to collaborate in limiting or eliminating certain kinds of nuclear and non-nuclear weapons. So, काफ़ी सारी treaties sign की जाती है, like Limited Test Ban Treaty. This banned nuclear weapon tests in the atmosphere, in outer space and underwater, signed by US, UK and USSR in Moscow on 5th August 1963, entered into force on 10th October 1963. But क्या इसकी अब कोई significance है? So no, इसकी अब कोई significance नहीं है, क्योंकि अब जो न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग होती है दैट इज कंप्यूटर स्टिमुलेटेड टेस्टिंग। ठीक है, कंप्यूटर स्टिमुलेटेड टेस्टिंग होती है। अब हमको ज़रूरत नहीं है कि हम एटमॉस्फेयर में, आउटर स्पेस या फिर अंडर वाटर टेस्ट करें। Okay, next treaty was Nuclear Non-Proliferation Treaty, allows only the nuclear weapon states to have nuclear weapons and stops other from acquiring them. For the purposes of NPT, a nuclear weapon state is one which has manufactured and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device prior to 1st January 1967. तो ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या थे? सो इन्होंने एक डेडलाइन दे दी कि 1 जनवरी 1967 से पहले किसी भी कंट्री को न्यूक्लियर वेपन को मैन्युफैक्चर करना है, एक्सप्लोड करना है या किसी भी न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस को टेस्ट करना है तो कर लो, उसके बाद अलाउड नहीं है। फाइन। अब इस डेडलाइन से पहले सिर्फ 5 कंट्रीज़ थी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे और उनको न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स बोला गया। ये थे यूएस, यूएसएसआर, चाइना, देन फ्रांस एंड ब्रिटेन। सो कोइंसिडेंटली जो हमारी P5 कंट्रीज हैं, P5 कंट्रीज मतलब परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, वही न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स भी बनी। Okay, so there are 5 nuclear weapon states: US, USSR, Britain, now Russia. Britain, France and China signed in Washington, London and Moscow on 1st July 1968, entered into force on 5th March 1970, extended indefinitely in 1995. और ये कंट्रीज ने ये भी प्रोविजन दिया कि अगर आप मतलब बाकी कंट्रीज अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो सरेंडर कर दोगे तो हम आपको न्यूक्लियर फैसिलिटी, हम आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे फॉर पीसफुल पर्पसेस, मतलब फॉर डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो ज़रूरी है वो हम प्रोवाइड करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर इंडिया joined this NPT or not. So kindly answer this question in the comment section. Okay, so the next treaty is Strategic Arms Limitation Talks, SALT 1. The first round of Strategic Arms Limitation Talks began in November 1969. The Soviet leader Leonid Brezhnev and the US President Richard Nixon signed the following in Moscow on 26 May 1972. Treaty on the Limitation of Anti-Ballistic Missile System. The Interim Agreement on the Limitation of Strategic Offensive Arms entered into force on 3rd October 1972. ओके, ऐसे ही सेकेंड राउंड भी हुआ सॉल्ट का बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर एंड सोवियत लीडर लियोनिड ब्रेजनेव। एक और ट्रीटी साइन की जाती है स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, START 1. Treaty signed by USSR President Mikhail Gorbachev and US President George Bush on the reduction and limitation of strategic offensive arms.
सेकेंड राउंड भी होता है इसका बिटवीन रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्टसिन. दिस वाज रशियन प्रेसिडेंट, वाई नॉट यूएसएसआर, क्योंकि अब तक जो दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द ईयर मेंशन्ड हियर इज 1993 और 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका था, तो मतलब रशिया बन चुका था. So Russian President Boris Yeltsin and the US President George Bush on the reduction and limitation of strategic offensive arms in Moscow on 3rd January 1993. अब ये कोई सिर्फ यही ट्रीटीज़ नहीं है, बहुत सारी ट्रीटीज़ ऐसी साइन की गई. फॉर एग्जांपल CTBT भी है जिसको भी इंडिया ने साइन नहीं किया. So there are several such treaties. Okay, now the next topic is non-alignment and non-aligned movement. अब कंट्रीज जो बाकी कंट्रीज थी, दे वर ज्वाइनिंग ईदर यूएस और यूएसएसआर. नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इंडिया ने किसी को ज्वाइन किया? इंडिया तभी इंडिपेंडेंट हुआ था और वो नहीं चाहता था कि वो किसी ब्लॉक को ज्वाइन करके अपनी इंडिपेंडेंस खो दे. और देयर वर सेवरल अदर रीजंस एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया प्रॉक्सिमिटी में था यूएसएसआर और चाइना के, एंड दीज बोथ कंट्रीज वर कम्युनिस्ट कंट्रीज. अगर आइडियली इंडिया को तो वेस्ट साइड में जाना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, लेकिन इंडिया जा नहीं सकता था क्योंकि प्रॉक्सिमिटी में यूएसएसआर और चाइना के था. और इंडिया कम्युनिज्म भी फॉलो नहीं कर सकता था क्योंकि एट दैट टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू ही वाज टेकिंग टफ डिसीजंस अगेंस्ट नक्सलाइट. सो दैट इज़ वाई इंडिया, काफ़ी सारे रीजंस थे कि इंडिया कम्युनिस्ट कंट्री भी नहीं था, डेमोक्रेसी था, तो इंडिया ना वेस्ट ज्वाइन कर पाया ना ईस्ट ज्वाइन कर पाया. तो इंडिया लेकर आया नॉन अलाइनमेंट एंड नॉन अलाइन मूवमेंट. ओके, सो एक्चुअली इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए भी नहीं था. वो क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए था? बिकॉज मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या कहना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि इंडिया एक लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन है और ये डिजर्व नहीं करता कि ये कोई ब्लॉक फॉलोअर बने या कैंप फॉलोअर बने. ठीक है, और ये दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू रविंद्रनाथ टैगोर कंसेप्ट ऑफ एकला चलो. दैट इज, आपको जो सही लग रहा है, आपके साथ अगर कोई नहीं है, देन आप अकेले ही चलो उस रास्ते पे. ओके, नाउ देयर इज लिटिल कंफ्यूजन बिटवीन नॉन अलाइनमेंट. यूजुअली स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन रहती है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बीच में. नाउ नॉन अलाइनमेंट इज अ फॉरेन पॉलिसी, मतलब हमारी पॉलिसी टूवर्ड्स अदर कंट्री. ठीक है, नॉन अलाइनमेंट इज अ मूवमेंट, इट वॉज अ मूवमेंट अमंग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मतलब पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स. पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स क्या हैं? जिनका एक कॉलोनियल पास्ट रहा है, जहां कॉलोनियल मास्टर्स थे, फाइन, या फिर डेवलपिंग कंट्रीज. ऑब्वियसली जहाँ पर कॉलोनियल मास्टर्स थे वो डेवलपिंग कंट्रीज ही हैं अभी तक, क्योंकि वो इतना इकोनॉमिक डेवस्टेशन करके गए थे. So the aim, अच्छा, non-alignment, the focus of non-alignment was कि हम किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे. फाइन, तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी इसी पे बेस्ड है, लेकिन द एम इज टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स, जैसे कि पॉवर्टी या फिर डिस्क्रिमिनेशन इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी फेस किया इन रीजन्स ने. तो द एम वाज टू एड्रेस द पोस्ट कॉलोनियल प्रॉब्लम्स. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल. The roots of NAM went back to Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, made efforts for Asian unity, decolonization, nuclear disarmament, advocated peaceful coexistence for securing world peace. 2. The friendship between the three leaders, Yugoslavia's Joseph Broz Tito, India's Jawaharlal Nehru, Egypt's leader Gamal Abdel Nasser, who held a meeting in 1956, Indonesia's Sukarno and Ghana's Kwame Nkrumah strongly supported them. These 5 leaders came to be known as 5 founders of NAM. Okay, so this is the map. ये first world है, मतलब US led या फिर West.
जहाँ पर लिबरल डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म है, ये सेकेंड वर्ल्ड है, मतलब यूएसएसआर और यूएसएसआर लेड, एंड दिस इज द थर्ड वर्ल्ड मीन्स डेवलपिंग कंट्रीज. So the first non-aligned summit was held in Belgrade in 1961. Non-aligned means इधर NAM summit. Fine. This was the culmination of at least three factors. तीन factors के culmination था. One was cooperation among these five countries जो मैंने अभी बात की, 5 countries, growing Cold War tensions and its widening arenas, the dramatic entry of many newly decolonized African countries into the international arena. By 1960 there were 16 new African members in the UN. ठीक है, न्यूली मतलब काफ़ी सारी उस टाइम पर अफ्रीकन कंट्रीज भी डीकोलोनाइज हुई एंड दे एंटर्ड द इंटरनेशनल एरेना. Okay, so the first summit was attended by 26 member states. The latest meeting, the 18th summit, was held in Azerbaijan in 2019. It included 120 member states and 17 observer countries. Now, what was non-alignment? Non-alignment एक्चुअल में क्या था, तो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग दिस. सो कोई बोलते हैं कि नॉन अलाइनमेंट जो था दैट वाज आइसोलेशनिज्म, कोई बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट न्यूट्रलिटी था. तो नॉन अलाइनमेंट क्या है ये हम समझ सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग कि नॉन अलाइनमेंट क्या क्या नहीं था. सो फर्स्टली टॉकिंग अबाउट आइसोलेशनिज्म. So isolationism means remaining aloof from world affairs. So क्या ये नॉन अलाइनमेंट था? तो नहीं, ये नॉन अलाइनमेंट नहीं था. नॉन अलाइनमेंट वाज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड अफेयर्स. ये जो आइसोलेशनिज्म की फॉरेन पॉलिसी थी ये यूएस ने फॉलो की टिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर. बट इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले ही 1946 में एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में कंडक्ट कराता है. सो हम आइसोलेशन तो नहीं चाहते थे अपना. दूसरा न्यूट्रलिटी. न्यूट्रलिटी रेफर्स प्रिंसिपली to a policy of staying out of war. States practicing neutrality are not required to help end a war. They do not get involved in wars and do not take any position on the appropriateness or morality of war. तो न्यूट्रलिटी भी नहीं था. इंडिया ने काफ़ी वॉर में पार्टिसिपेट किया. इंडिया ने कोशिश की मीडिएट करने की बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर एज वेल. Now, the next topic is new international economic order. The challenge for most of the non-aligned countries, a majority of them were categorized as least developed countries. So obviously पोस्ट कोलोनियल स्टेट्स थी तो लीस्ट डेवलप तो होंगी ही क्योंकि कोलोनियल मास्टर्स ने इतना डिवेस्टेशन किया था. वॉज टू बी मोर डेवलप्ड इकोनॉमिकली एंड टू लिव देयर पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी. इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज ऑल्सो वाइटल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ न्यू कंट्रीज. विदाउट सस्टेन डेवलपमेंट अ कंट्री कुड नॉट बी ट्रूली फ्री. तो जब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती, जब तक इकोनॉमिकली एक कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं है, तब तक वो इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है क्योंकि उसको डेवलप्ड कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा फॉर इट्स डेवलपमेंट. सो दैट इज़ वाई जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उनके लिए प्रायोरिटी क्या था? उनके लिए प्रायोरिटी था इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, so the idea of new international economic order originated with this realization. The United Nations Conference on Trade and Development brought out a report in 1972 entitled Towards a New Trade Policy for Development. The report proposed a reform of the global trading system so as to क्या reforms propose किए रिपोर्ट ने? Give the LDCs control over their natural resources, okay, obtain access to Western markets so that LDCs could sell their products and therefore make trade more beneficial for the poorer countries, reduce the cost of technology from Western countries, provide the LDCs with a greater role in international economic institutions. But 1980s तक आते आते ये फेड आउट हो जाता है. क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थी उनकी यूनिटी इतनी ज़्यादा थी कि जो LDCs थी उनकी यूनिटी लैक करने की वजह से वो उनके सामने स्टैंड कर ही नहीं पाए. नाउ इंडिया एंड द कोल्ड वॉर. As a leader of NAM, India's response to the ongoing Cold War was twofold. तो इंडिया का response to the ongoing Cold War was
पहली चीज़, उन्होंने पर्टिकुलर केयर रखी कि वो अलायंसेस से दूर रहें। और दूसरी चीज़, it raised its voice against the newly decolonized countries becoming part of these alliances। जो newly decolonized countries थी उनको भी उन्होंने वॉइस रेज की कि वो भी कहीं अलायंसेस के साथ ना चले जाएं। अब बेनिफिट्स क्या थे इंडिया के नॉन अलाइनमेंट के? So benefits were, first of all, non-alignment allowed India to take international decisions and stances that served its interest rather than interest of the superpowers and their allies। India वो decisions ले पाया जो उसके interest को serve करे, ना कि उसके सुपर पावर के इंटरेस्ट को सर्व करे। सेकेंड थिंग, इंडिया मतलब उसके नॉन अलाइनमेंट की वजह से कोई भी सुपर पावर उसको ग्रांटेड नहीं ले सकता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूएस ने प्रेशराइज किया इंडिया को तो इंडिया टिल्ट कर जाएगा टुवर्ड्स यूएसएसआर। अगर यूएसएसआर ने प्रेशराइज किया इंडिया को तो इंडिया टिल्ट कर जाएगा टुवर्ड्स यूएस। सेकेंड, सो इंडिया वॉज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर। If India felt ignored or unduly pressurized by one superpower, it could tilt towards the other. Neither alliance system could take India for granted or bully it। Criticism क्या था? First, India's non-alignment was said to be unprincipled. In the name of pursuing its national interest, India, it was said, often refused to take a firm stand on crucial international issues। So criticism क्या है कि इंडिया अपने जो इंटरेस्ट है उसी को वो फुलफिल कर रहा था और उसी को परस्यू कर रहा था और कोई भी क्रूशियल इंटरनेशनल इशू पे वो कोई स्टैंड ले ही नहीं रहा था। और काफ़ी बार अमेरिकन ने इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया है बाय सेइंग रिफ्लेक्सिव एंटी अमेरिकनिज्म। रिफ्लेक्सिव एंटी अमेरिकनिज्म मतलब कि कुछ भी हो, चाहे अमेरिका अच्छा भी करे तब भी इंडिया को क्रिटिसाइज ही करना है अमेरिका को। मतलब कोई अजीब सा उनके दिमाग, इंडियंस के दिमाग में है कि अमेरिका बुरा है, तो ऐसा अमेरिका का कहना था ऑन नॉन अलाइनमेंट। सेकेंड, इट इज सजेस्टेड दैट इंडिया वॉज इनकंसिस्टेंट एंड टू कॉन्ट्रोडिक्टरी पोस्चर्स। हैविंग क्रिटिसाइज्ड अदर्स फॉर ज्वाइनिंग अलायंसेस, इंडिया साइंड द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन अगस्त 1971 विद द यूएसएसआर फॉर 20 years। तो 1971 में सिचुएशन थी बांग्लादेश वॉर। पाकिस्तान, यूएस और चाइना का एक्सेस बन चुका था। इंडिया ने इनको काउंटर करने के लिए साइन की ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इन अगस्त 1971 विद यूएसएसआर फॉर 20 years। सो इंडिया बिकेम डी फैक्टो अलाई ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, तो इससे आपको तो रोकता है इंडिया अलायंस में जाने से और खुद ही अलायंस में चला गया यूएसएसआर के साथ। बट दैट वाज नेसेसिटी, क्योंकि उस टाइम इतना प्रेशर ये तीनों कंट्रीज मिलकर बना रही थी इंडिया पे कि इंडिया को अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उधर जाना ही पड़ा यूएसएसआर के पास। और दूसरी चीज़, दिस ट्रीटी डिड नॉट रिस्ट्रिक्ट इंडिया फ्रॉम हैविंग रिलेशंस विद अदर कंट्रीज ऑल्सो। अगर वो यूएस के साथ रिलेशन, अगर यूएस करना चाहता इंडिया के साथ रिलेशंस, तो ये ट्रीटी इंडिया को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही थी। सो यहाँ पर आपका ये चैप्टर पूरा होता है। थैंक यू। लेट्स मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।